birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikhism and the first Guru of Sikh community. Guru Nanak Dev Ji, also known as Guru Parab, holds immense significance not just for Sikhs but for people of all faiths around the world. It is a day to reflect on the teaching of Guru Nanak and to draw inspiration from his wisdom. Guru Nanak Dev Ji was born in 1469 in Talwandi, which is now in Pakistan. His life and teachings continue to illuminate the path of righteousness, equality, and compassion. Guru Nanak's teachings, Guru Nanak's message transcends religious boundaries and speaks to the core of human values. These teachings are a timeless guide for leading a meaningful and purposeful life. One of the central tenets of Guru Nanak's philosophy is the concept of Ik Ankar, the belief in the oneness of God. This principle underscores the unity of all creation, emphasizing that we are all interconnected and there is a divine spark within each of us. Guru Nanak's teachings encourage us to see beyond the superficial differences that divide us and recognize the common thread of humanity that is bind us together. Guru Nanak advocated for equality and social justice. He vehemently opposed discrimination based on caste, creed, or gender. His teachings emphasize the dignity for all individuals, promoting a society where every person is treated with respect and compassion. Guru Nanak's commitment to equality is a timeless lesson for us, urging us to build societies that uphold justice and fairness. The concept of Naam Japna Kirat Sarni Van Chakna encapsulates Guru Nanak's teachings on righteous living. It encourages individuals to meditate on the divine, work hard with honesty and integrity, and share the fruits of one labor with those in need. These principles guide us toward a life of purpose, diligence, and selfless service to others. In the present times, Guru Nanak's teaching remains relevant and offer a roadmap for addressing contemporary challenges. The principle of compassion, humility, and selfless service can inspire us to build a more harmonious and inclusive world. Guru Nanak's emphasis on dialogue, understanding, and tolerance serves as a beacon in a world often marked by division and strife. As we celebrate Guru Nanak Jayanti, let us try to imbibe the spirit of Guru Nanak's teaching in our lives. Let us commit ourselves to fostering unity, embracing diversity, and working towards a world where love and compassion prevail. Guru Nanak's message is not confined to any particular time or place. It is universal guiding light that can lead us to a more enlightened, compassionate future. Thank you, and may we all be inspired by the teaching of Guru Nanak Dev Ji on this auspicious Guru Nanak Jayanti. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Scout clap, ready, go. Thank you very much for sharing with us the facts and importance and the uniqueness of the day. Guru Nanak emphasizes oneness, equality, and compassion. His teachings, captured in the Guru Granth Sahib, guide us towards leading a life of happiness, love, and service to humanity. As we gather here, let us reflect on the values that Guru Nanak Dev Ji is imparted, values that are universal and timeless. The concept of Ek Ankar, the belief in the oneness of God, reminds us of the incorrectness of all creation, fostering unity and harmony. Guru Nanak's commitment to equality and social justice is exemplified in his teachings. He vehemently opposed discrimination based on caste, creed, or gender, advocating for a society where every individual is treated with respect and dignity. The three pillars of Sikhism, Naam Japna, meditation on God's name, Kirat Karni, honest living, and Van Chakra, sharing with others, serve as a guide of righteous living. They inspire us to cultivate a deep spiritual connection, work directly with integrity, and share our blessings with those in need. Now we invite Mr. Dilip Sharma Sir, PGP Delhi, to present a wonderful meditation on the occasion. All of you may close your eyes and listen. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूरत अजुनी सब गुर प्रसाद जप आद सत जुगाद सत है भी सच नानक होसी भी
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सरम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवई जय सोची लगवार चुपे चुप न होवई जय लाई रहा निरतार मुखिया मुख न उतरी जय बन्ना बुरिया पार सहसनान बालक होवई ताइक न चले नाम कहवे सचियारा होइए कहवे कुड़े टुटे पार हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सबम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अर्थात वह परमात्मा सत्य है, वह एक है और वह अपने आप में कर्ता पुरुष है। कर्ता पुरुष इसलिए है क्योंकि उसी की रजा से, उसी की मर्जी से यह संसार सिरजा गया है। वह निर्भय है, उसे किसी का भय नहीं, और वह निर्भय उसकी किसी से कोई शत्रुता नहीं। वह अकाल है, अर्थात वह समय की सीमाओं से परे है और वह किसी योनि में नहीं आता। गुरु प्रसाद अर्थात गुरु की कृपा से हमें मंत्र मिला कि उसका नाम जप वह आज और युगादि से सच है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह सच है और हमेशा सच ही रहेगा। तो आज के इस अवसर पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने हृदय में सभी के लिए प्रेम रखें और स्नेह के साथ आगे बढ़ते रहें। सद्गुरु के चरणों में हर विद्यालय परिवार बारंबार नमन करता है। और आज के इस पुनीत अवसर पर अब मैं आमंत्रित करता हूँ बहुत सम्मान के साथ श्रीमान राजेश कुमार जी, विद्यालय प्राचार्य महोदय, जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम सभी को शुभवार। आधुनिक शिक्षकों में प्यारे बच्चों, जैसे कि पता है आज हम संविधान दिवस एवं गुरु नानक जयंती मना रहे हैं। तो अभी आपके सामने जो है इतनी अच्छी प्रस्तुति दी गई बच्चे के द्वारा, एक बार इतने जोर से 3 तालियों का मान दो। आज के प्रोग्राम के लिए मैं सीसीए डिपार्टमेंट दिलीप शर्मा सर, प्रीति मैडम एवं अन्य शिक्षकों का मैं जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ में बधाई भी देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया, वो भी 1 दिन के गैप के अंदर। तो आज हम जो है संविधान दिवस मना रहे हैं, तो कोई मुझे बताएगा संविधान क्या होता है? कोई बता सकता है यहाँ से संविधान क्या है? बताइए। 9th से 10th क्लास के स्टूडेंट होते हैं। अभी आपके सामने इतनी सी स्पीच रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या होता है? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का कलेक्शन होता है, नियमों का संकलन है, जिसके आधार पर देश का शासन चलता है।
हमें हर चीज को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। आपके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है कि नहीं? जैसे आप यूनिफॉर्म में आते हो, प्रॉपरली जो है स्कूल में आते हो, ब्रश करके, नहा धोकर, हेयर को कॉम करके, ऐसे से आते हो आप। और स्कूल में भी आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, बदमाशी नहीं करते हो, हल्ला गुल्ला नहीं करते हो ना, तो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं हमको। तो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना जिस तरह से स्कूल में जरूरी है, उसी तरह से देश के लिए भी एक किताब है बहुत मोटी, सबसे बड़ी वर्ल्ड का जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। उसकी खास बात क्या है कि ये हमने अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी बातें लेकर ये बुक को बनाया गया है। तो संविधान बनाने में हमारे जो है बहुत लोगों का योगदान रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और इसकी जो अच्छी बातें हैं हमें उसकी पालना करनी चाहिए। अगर किसी तरह से स्कूल को अच्छा करना है तो स्टूडेंट्स को जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, डायरी में भी आपको दिया हुआ है, तो वो हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक उसी तरह से एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। और साथ में आज हम गुरु नानक जयंती मना रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात जो है दिलीप शंभर सर ने बताई कि हमें जो है एक समाज में अच्छी तरह रहना चाहिए और देने में यकीन करना चाहिए, देने में और बांटने में। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। जब वो नानक जी थे, यानी जब वो गुरु नहीं बने थे, उस समय उनके पिताजी ने उनको 2 रुपए देकर कहा कि जाओ और कुछ सौदा करके आओ, कुछ बिजनेस करके आओ। तो नानक जी जो निकले दूसरे शहर की तरफ, तो रास्ते में उन्हें बहुत गरीब लोग दिखे जिन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया था। तो उन्होंने पूरा पैसा जो है उनको खाना खिलाने में, भोजन की व्यवस्था करने में लगा दिया। और फिर वो खाली हाथ घर पहुंचे तो उनके पिताजी ने पूछा कि मैंने जो तुम्हें सौदा करने के लिए दिया था, बिजनेस करने के लिए जो पैसा दिया था, क्या किया तुमने इसका? बहुत जल्दी आ गया, 1 दिन में आ गए। तो नानक जी ने पूरी कहानी बताई कि ऐसे समय गया, लेकिन मुझे रास्ते के अंदर जो है इतने लोग दिखे जो कि बहुत लाचार थे, कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया था। तो उनकी दुर्दशा देखकर मैं से रहा नहीं गया और मैंने इनके भोजन का प्रबंध किया। तो ये मैं आज बिजनेस करते आया। तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए कि उन्होंने बोला कि आज कुछ सच्चा सौदा करके आएगा, इसलिए आप कहानी के नाम में जब पढ़ोगे ना तो सच्चा सौदा के नाम से मिलेगा। और दूसरी बात, हक हलाल की कमाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो आप छोटे हो, लेकिन छोटे में भी ये चीज आप ट्राई कर सकते हो कि आपको हमेशा वही चीज करनी जो सही हो, और कोई भी चीज मेहनत करके हासिल करना है। किसी चीजों में शॉर्टकट नहीं होता है। जो चीज आप मेहनत करके हासिल करते हो वो लंबे समय तक रहती है और उसी की असली पहचान होती है। तो कमाई की बात नहीं है, जिंदगी के अंदर भी अगर आप कुछ सही काम करते हो तो उसी की पहचान होगी। गलत तरीके से कमाया हुआ धन या गलत तरीके से कमाया हुआ यश या गलत तरीके से कमाए हुए आपके जो मार्क्स हैं, आपके स्टूडेंट के लिए तो मार्क्स हो सकता हूं मैं, उससे कुछ वैल्यू नहीं होती है। देर से देर उसका नुकसान ही होता है। हमेशा ईमानदार बनना चाहिए। और नानक जी ने जब बहुत आगे अच्छे काम किए तो उनको गुरु की उपाधि दी गई, उनके नाम के आगे गुरु शब्द जोड़ा गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि गुरु का महत्व कितना होता है। गुरु नानक जयंती गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, पूर्णिमा होती है फिर, और वो दिन के उनको याद रखने का नहीं है, हमें अपने गुरुजनों को भी याद रखना चाहिए। आपके टीचर्स जो है, हम टीचर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ वो और भी दूसरे काम करते हैं, वो गुरु के समान है। तो वो जो सिखाते हैं, आपको जो बताते हैं, उनको मान सम्मान देने के लिए हमें उनको भी याद रखना है। यानी कि आपको अपने टीचर्स को याद रखना है, उनको विश करना है, उनकी पूजा करनी है। तो आज का मैसेज यही है कि
आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कीजिए और अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। Sound clap, ready, go. Thank you, Minister Principal Sir. On this Guru Nanak Jayanti, let us not only remember the teaching of Guru Nanak Dev Ji, but also strive to embody them on our daily lives. Let us foster a spirit of love, compassion, equality, transcending barriers, and contribute to betterment of our community and the world at large. May the light of Guru Nanak Dev Ji's wisdom illuminate our heart and guide us to the path of truth and righteousness. Happy Guru Nanak Jayanti to all. Thank you.